ये भागवतम की जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसको आगे बढ़ाते हम दूसरे स्कंद भागवतम से 7वां अध्याय में से उसमें से एक श्लोक लेकर उसके ऊपर हम श्रवण कीर्तन करते हैं। हाँ, श्लोक नंबर 8। विदासपत् उदिता परित्वीर अंतिरज्नो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसे वनानि तस्मा अदाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपार अधस्तत् विदासपत्नी उदिता पत्रिभिर अंतिराज्नो भालोऽपि सन् उपगतस्तपसे वनानि तस्मा अधाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपार अधस्तत् विद्हासपत्नी उदिता पत्रिभिरन्तिराज्नो भालोऽपि सन् उपगतस्तपसे वनानि तस्मा अधाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपार अधस्तत्। Translation: being insulted by sharp words spoken by the co-wife of the king, even in his presence, Prince Dhruva, though only a boy, took a severe penance in the forest. And the Lord, being satisfied by his prayers, awarded him the Dhruva planet, which is worshipped by great sages both upward and downward. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. When he was only 5 years old, Prince Dhruva, a great devotee and the son of Maharaj Uttanapad, was sitting on the lap of his father. His stepmother did not like the king's patting her stepson, so she dragged him out, saying that he could not claim to sit on the lap of the king because he was not born out of her womb. The little boy felt insulted by this act of his stepmother. Nor did his father make any protest, for he was too attached to his second wife. After this incident, Prince Dhruva went to his own mother and complained. His real mother also could not take any step against his insulting behavior, and so she wept. The boy inquired from his mother how he could sit on the royal throne of his father, and the poor queen replied that the only Lord could help him. The boy inquired where the Lord could be seen, and the queen replied that it is said that the Lord is sometimes seen by the great sages in the dense forest. The child prince decided to go into the forest to perform severe penances in order to achieve this objective. Prince Dhruva performed a stringent type of penance under the instruction of his spiritual master, Sri Narad Muni, who was specifically deputed for this purpose by the personality of Godhead. Prince Dhruva was initiated by Narada into chanting the hymn composed of 18 letters, namely Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Lord Vasudeva incarnated himself as Prishnigarbha, the personality of Godhead, with 4 hands, and awarded the prince a specific planet above the 7 stars. Prince Dhruva, after achieving success in his undertaking, saw the Lord face to face and was satisfied that all his needs were fulfilled. The planet awarded to Prince Dhruva Maharaj is a fixed Vaikuntha planet installed in the material atmosphere by the will of the Supreme Lord Vasudeva. This planet, although within the material world, will not be annihilated at the time of devastation, but will remain fixed in its place. And because it is a Vaikuntha planet, never to be annihilated, it is worshipped even by the denizens of the 7 stars situated below the Dhruva planet, as well as by the planets which are even above the Dhruva planet. Maharishi Bhrugu's planet is situated above Dhruva planet. So the Lord incarnated himself as Prishnigarbha just to satisfy a pure devotee of the Lord.
And Prince Dhruva achieved this perfection simply by chanting the hymn mentioned above after being initiated by another pure devotee, Narada. A serious personality can thus achieve the highest perfection of meeting the Lord and attain his objective simply by being guided by a pure devotee who automatically approaches by dint of one's serious determination to meet the Lord by all means. The description of Prince Dhruva's activities can be read in detail in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ukam karoti vachalam pangum langayate girim yakripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanya Ishwaram Paramanande Madhavam. Hare Krishna. Vidasa patni udita pati biranti rajno Bhalo pisan upagatam stapase vanani Tasma adadruvagatim grinate prasanno Divyastuvanti munayo yadupar adastan. हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ।
श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं उनके असीम कृपा के वजह से हमें इस अंत कृष्ण भक्ति में भावनामृत संघ के इसमें हमें अवसर मिला है, तो उनकी अनुयायी हो के हम इसके बारे में कृष्ण भक्ति के बारे में बता सकते हैं और कुछ उनके बारे में कर नहीं सकते। नो प्रॉब्लम। इस कलयुग में ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये सब डिस्टर्बेंस स्वाभाविक। बट जो भक्ति करना चाहता है और जो भक्ति सुनना चाहता है उनको कुछ लेन देन नहीं रहता है। नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद एक बार मैं आचार्य, अगर आपने भी देखा होगा प्रभुपाद की आचार्य सीडी है, प्रभुपाद लॉस एंजलिस में बैठे हैं ऐसे लेक्चर दे रहे हैं, तो पीछे कराटे क्लास रहता है। वाह वाह, डिस्टर्बिंग। सो कोई डिवोटीज उठ के नो 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 प्रॉब्लम। उनको मैं जब बोलता हूँ हरे कृष्णा करने के लिए उन लोग नहीं करते, पर वाह वो करते। सो दिस इज स्वाभाविक, ये कलयुग का एक सिम्टम है। पर जिसको इच्छा है तो भगवान अवसर प्रदान करते हैं कि भक्ति कैसे करने के लिए। तो जैसे हम ये श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये जैसे हम भगवान की असीम कृपा के हम आगे बढ़ाते जा रहे दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद भागवतम में, जैसे उस समय जिस मंगलवार को हमें वो सेवा करने को अवसर मिला था, उस समय हमने इस कथा को उस जगह पे विश्राम दिए थे जहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को कंक्लूजन बताते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। जो जिस व्यक्ति को तुम सर्व उत्तम सर्व गुण संपन्न, वो मैं नहीं हूँ। सर्व गुण संपन्न अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गोविंद है। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई भी मैं, अशिता, देवला, तुम, नारदा, शिवा, हम सभी उनकी स्तुति करते रहते हैं। तो ये कंक्लूजन अगर आए तो ये हमारा जीवन परिपूर्ण है। इसलिए नारदा आज तुम ऐलान कर दो, सबसे उत्तम है भगवान श्री कृष्ण गोविंद। भज गोविंदम भज गोविंदम, शिव जी भी बताते हाईएस्ट। और उसके बाद ब्रह्मा बताते कि वहाँ ही समाप्त नहीं करते, वहाँ बोलते कि नारदा अभी मैं तुम्हें भगवान की जो असीम अवतार है, उनकी अवतारों की सीमा नहीं है। उनकी अवतार मतलब सागर में कितने लहरें हैं वो भी गिन सकते हैं, पर भगवान के अवतार का कोई सीमा नहीं है। अगर समुद्र के किनारे में कितने रेती है वो भी अगर हुआ तो ये असंभव कार्य है, पर अगर संभव भी हुआ तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आए, उसका जो बता देना ग्रेन, हर कण को सागर, जो समुद्र के किनारे की जो मट्टी है उसका वो अनगिनत है, उसको कोई सीमा नहीं है। पर वो भी अगर गिनती हुआ, पर भगवान की जो भगवान की जो अवतार है उसकी कोई समाप्ति ही नहीं है। इसलिए उसमें से मेरी कितनी क्षमता है, उसमें से जितनी क्षमता है मैं उसमें से भगवान के जितने अवतार है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान ने कितने सारे अवतार लिए हैं और उसके बारे में हम गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ से शुरुआत करते हैं, बताते कि पहला अवतार भगवान की जो स्वयंभू मनु के समय फर्स्ट, वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु लोग आते हैं, 14 मनुस इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो हर मनु में भगवान मनवंतरा, एक मनवंतरा जब होता है 14 मनु का एक साइकिल होता है, उसको एक मनवंतरा बोलते हैं। और उसमें एक बता दें कि एक कल्पा होता है, वन कल्पा, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक फुल सर्कल होता है, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। वैसे 1000 कल्पस मेक वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो ये अगर कैलकुलेटर लगता है अपना पास मैथमेटिक्स भी नहीं रही या डेटा भी उड़ जाएगा अगर आप स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो। मनवंतरा का आयु का कोई सीमा नहीं है और आप बोले 14 मनु, इसलिए बता देना वैदिक शास्त्र ये हमारे मैथमेटिक्स और हमारी सोच से भी बाहर है।
आर्यभट्ट जो हमारे मैथमेटिशियंस थे भाई, उनकी जो उन्होंने मैथमेटिक्स जितना हमारा दिमाग में बैठ सकता है उतना ही उन्होंने मैथमेटिक्स दिया है, वो गिनती, नहीं तो हमारी गिनती। इसलिए वैदिक जो बता दें स्पिरिचुअल थिंग इज अबोव, इट इज इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल, उसकी कोई सोच नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। अगर किस में अगर हम बोलते हैं ना ज्ञान की कुछ तुलना कर दे, अच्छा आप कितना न्यूटन के जितना स्कॉलर हो उतने पढ़ाए ले, अब तुलना के लिए कोई एक उदाहरण रहना चाहिए। सौंदर्य में आप किसी अभिनेत्री को बोलते क्या आप उतने उसके जैसे सौंदर्य हो, अगर किसी दौलत में बोलते अरे आप क्या अंबानी की तंत्र दौलत, तो तुलना के लिए कोई व्यक्ति रहना चाहिए या उसकी योग्यता रहना चाहिए। पर भगवान की तुलना की हमारी सोच से बाहर है। जैसे लास्ट टाइम में मतलब हमारी सोच जैसे एक मेंढक के जैसे जो एक कुआं में, इट इज बियॉन्ड योर थिंकिंग, हमारी सोच से बाहर है। अरे तुम सोच नहीं सकते हो, सोचने में इट्स कंप्लीट इनकंसीवेबल। तो वो बताते कि ब्रह्मा बताते कि इट लाइक उसमें से इतनी अपरंपार है कि उसमें से मैं थोड़ा भगवान की जो लीला है वो मैं बता सकता हूँ। तो एक पहला मनवंतर में जब भगवान सुकर रूपा भगवान एक सुकर, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं हम, सुअर, वरहा, सुहर, वरहा रूपा। जयदेव गोस्वामी बताते वसति दशन शिखरे धरनी तव लागना शशिनी कलंक कलेव निमागना केशव द्रीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। एक्चुअली वरा सुकर, देखिए हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ ऐसे ही आते, हमें ज़्यादा मोस्टली प्रोमिनेंट है भगवान की राम अवतार या कृष्ण के जब वो स्वयं आते हैं या नरसिंह अवतार, पर भगवान ऐसे बहुत सारे अवतार हैं जिसकी हमारी सोच नहीं है। ये हमारी जो कल्प में व्यासदेव जितना बिता सकते उतना उन्होंने लिखा है नहीं तो हमारा दिमाग का डेटा उड़ जाएगा कंप्यूटर का डेटा, यू कैन नॉट एसिमिलेट। चार मुंडी के जो ब्रह्मा जी है वो बोलते बस इन लोगों को बोलते ना, अगर जितना उनका कैपेसिटी है उतना ही बोलना पड़ेगा ना। अगर एक केजी के बच्चे को आपने पीएचडी का एजुकेशन दिया तो बोलेगा पापा कल से मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है। उसके लेवल की जितना सिखाना पड़े, उसी तरह हम सोचते हैं कि आई एम अ स्कॉलर, आई एम दिस एंड स्कॉलर कुछ नहीं है। उधर ऊपर के जो प्रोफेसर है उन्होंने बोला भाई बेटा तेरे को इतना ही ज्ञान है तो आप इतना ही ले लो। तो उसी तरह भगवान ऐसे बहुत सारी लीला है, पर भगवान एक लीला है सुकर रूपा, वराह रूपा। आजकल ऑफकोर्स मेरे को पता नहीं है, लोग बोल रहे थे कि हाल ही में कुछ एक पिक्चर आया था कंतारा जो भी है, उसमें लिखा है कि ऑफकोर्स वो बोलते कि वो एक देवगण के बारे में है और वो बोलते कि वराह रूप है। ऑफकोर्स ये भगवान की जो शिव जी के अंश है वराह वो रूप में है, पर डायरेक्ट विष्णु इनकारनेशन वराह देव वो सुकर है। तो भगवान पहले सुकर रूप में आते, उसके बाद भगवान प्रजापति सुयज्न के रूप में आते, जब कुदी प्रजापति होके, और उसके बाद भगवान कपिल मुनि के रूप में आते हैं, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय के रूप में, पहले वो बताते कि कौन से इनकारनेशन है, दत्तात्रेय के रूप में अत्रि के पुत्र होकर, और भगवान एक काल में 4 कुमार के रूप में अवतार आते हैं, और उसके बाद नर नारायण ऋषि, और उसके बाद पृश्नि गर्भः, और उसके बाद महाराज पृथु, उसके बाद ऋषभदेव, हयग्रीवा, मत्स्य, कूर्मा, नरसिंहदेव, और उसके बाद वापस अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान वापस अवतार लेते हैं, और उसके बाद वामना, हंसावतार, मनु, धनवंतरी, परशुरामा, रामा, कृष्ण, व्यासदेव, बुद्ध, चैतन्य, और उसके बाद कल्कि। ऑफकोर्स ये हमारा लिमिटेशन है। उसके बाद तो पहले ही ब्रह्मा जी उनको इंट्रोडक्शन दे दिया,
नारदा श्रीमद् भागवतम मतलब तुम जो बताएंगे ये भगवान की ये सब अवतार और उनके भक्तों के बारे में लीला है, भक्तों के बारे में लीला है, ये अवतार है और उनके भक्तों के साथ वो कैसे वार्तालाप के उसके बारे में। अगर इसमें तुम्हारा मन और तन कंप्लीटली उसमें बता दे कि एब्जॉर्ब मतलब एकदम समाधि हो जाएंगे तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? Why does the Lord comes again and again? हमेशा इधर आके मतलब हमने सुना है, भगवद गीता में भी सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, पर क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक्चुअली भगवान इस जैसे भगवद गीता में इसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस मेन रीजन है कि जब भी इस धरती पे या इस लोक में भौतिक दुनिया में अधर्म का ज़्यादा नाश बढ़ता है, अधर्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है और धर्म का विनाश हो रहा है, तो तभी धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। मेन रीजन है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु लोग की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम एक बार बोलते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अपने उधर से इधर आने की क्या ज़रूरत है? वैकुंठ में बैठ के एक अगर कुछ रावण का वध करना है या हिरण्यकशिपु का वध करना है या कुंभकर्ण का, इतना बड़ा रामायण महाभारत करने की क्या ज़रूरत है? एक ही मिनट में कर सकते हैं ना। हृदय में तो बैठे हैं, एक हार्ट को एक थप्पड़ी मार दे तो हार्ट अटैक हो गया। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उतना उनको प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? रावण को एक मिनट में तुरंत ये आता है विचार, इतना सब प्रयास, इतना ब्रिज बांधना पड़ता है, इतना ये क्यों? भक्तों को ग्लोरीफाई करना। और मैं आपको एक देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर देखने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट में आजकल के जो मॉडर्न ट्रेंड में उसको बोलते हैं ट्रेलर। एक ट्रेलर निकलता है। क्यों ट्रेलर निकलता है? ताकि रुचि उत्पादन हो जाए। अरे यार ये तो देखना ही पड़ेगा, और रुचि उत्पादन करने के लिए लोग ट्रेलर निकालते हैं। उसी तरह भगवान अपनी जो लीला है उसका जो ट्रेलर है, भगवान बताना चाहते हैं कि मेरा लीला हमेशा शाश्वत है। क्योंकि हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जो भगवान के दाम छोड़ के इधर बैठे और भूल गए। हम उनको भूल के हमने इधर ही आज चल रहा है, यही हमारा जिंदगी है, यही चल रहा है। पर पिताजी को बहुत ख्याल है, मेरा बेटा छोड़ के चले गया है। हम लोग बोलते हैं माता पिता का सेवा करना, माता पिता का। क्यों माता पिता का सेवा करना चाहिए? क्योंकि माता पिता का ये सद्गुण है कि वो अपने बच्चे को कभी भूलते नहीं है। बच्चों लोग का स्वाभाविक गुण है कि वो भूल जाते हैं। अरे कौन देखा, उसमें क्या, वो तो बड़ा, उसका ड्यूटी है, माता पिता का ड्यूटी रहता है, पढ़ाई लिखा, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? बच्चे लोग का स्वाभाविक गुण है माता पिता का कृतज्ञ नहीं रहना। उसी तरह हम सभी जो इस भौतिक दुनिया में हैं, हम हमारे ओरिजिनल फादर को भूल गए। वी हैव लेफ्ट हिम। पर वो हमें भूले हैं नहीं, वो हमारे पीछे पीछे पीछे, वो हमें पता भी नहीं है, वो चुपके से पीछे रुके हैं। एक दिन मेरा बेटा मुझे देखेगा, एक दिन मुझे बेटे, उल्टा वो देख नहीं रहा है, उल्टा गाली दे रहा है। भगवान ने क्या किया मेरे को? यही किया ना,
इतना सब पूजा करने यही किया ना, वो कुछ बोलते नहीं है। इसलिए बोलते भगवान का एक गुण है सहनशीलता, इज वेरी टॉलरेंट। एथिस नास्तिक का भी शब्दों को टॉलरेट करते हैं, शिशुपाल जैसे व्यक्ति का भी शब्दों को सहन करते हैं। हम जैसे व्यक्ति जो हमेशा कुछ भी हो तो भगवान को टुकराते, हमको भी सहन, ये भगवान की सबसे, इसलिए बोलते हैं कि ये जो सहनशीलता गुण है ये भगवान से। इसलिए सोचिए वो अब्रह्मण भगवान परम ब्रह्म, वो उनके पास इतनी सहनशीलता है, तो हमें थोड़ा सहनशीलता लेने में क्या प्रॉब्लम है? हमें इतना सहन कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। एक दिन तो एक दिन आएगा, इसलिए भगवान ये अवतार लेते हैं। बेटा जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास टाइम, मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मुझे भगवान वहां पे लोग कम हो गए इसलिए मैं तुम्हें लेने, इटर्नल एसोसिएट्स आर देयर। भगवान को कोई हमारी गुलाब जामुन की कमी नहीं है, हमारी दौलत की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आते हैं टू आस्क लव, रेसिप्रोकेशन। चलो बेटा कम बैक, नहीं मुझे नहीं आना है, बट यहाँ पे कितना टुकरा जाएंगे, ठोकर खाते रहोगे, तुम्हारे बाकी सभी वहां पे है। इसलिए भगवान ये लीला करना पड़ता है, क्योंकि ये एक गैप है, ये एक गेटवे है। भगवान बता, अगर ये गेट खुलेगा तो तुम वापस मेरे धाम में आ जाओगे। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हारा कॉन्स्टेंटली ये चिंतन है, ये चिंतन रहेगा तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है, ये सभी ये छोटा मोटा प्रॉब्लम के पीछे बैठे हो। ये ऐसा है कि जैसे अगर बरसात के समय यहाँ पे ये छत के ऊपर कुछ खड्डा रहेगा तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे वहाँ खड्डा छुपा देंगे, तभी इतना जोर से इधर से खड्डा आएगा, इधर से छुपा देंगे, उधर से आएगा। यहाँ पे दुनिया में इस प्रॉब्लम जो आता है ये ऐसे ही है, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहां से निकल के एक अच्छी इमारत में खड़े रहो ना। इसलिए भगवान यहां पे डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस पेटिलिटी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। ये छोड़ के हमारा बिजनेस प्रॉब्लम, बच्चों लोग का एजुकेशन प्रॉब्लम, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम, इसके ऊपर ये अब वो करना चाहिए। ट्रेन का प्रॉब्लम, बस का प्रॉब्लम, बस सॉल्व करने के लिए ओवरब्रिज प्रॉब्लम, उसके बाद ट्रैम और क्या मेट्रो प्रॉब्लम। यहाँ पे दुनिया में प्रॉब्लम एक अच्छा वर्ड बताते, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, द प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग accepting a spiritual master is one should consider this material world useless। पहला गुण क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ये दुनिया अशाश्वत और दुखालय है, तभी हम ये सीरियसली लेंगे ना। फर्स्ट दैट इज अ प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। ये पहला गुण होना चाहिए कि कैसे भी हाउ शुड आई गेट आउट ऑफ दिस। तो इसलिए भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। जस्ट डिस्कस जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। इसलिए भगवान ताकि बोलते हैं ये जब आप कॉन्स्टेंटली सुनते रहेंगे तो तभी हम इस भौतिक इसमें से निकलते। इसलिए भगवान ये अवतार लेते हैं ताकि भक्तों की उनकी जो स्तुति है, भगवान की गुणगान की स्तुति है, वो गाते गाते हम इस भौतिक धाम से निकल सकते, तभी हमारे हृदय की जो ग्रंथि है टूट सकता है। तो अभी प्रश्न निकलता है हमें क्यों नहीं रुचि है उसके ऊपर? आप तो वही बोलते हैं इसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, उसमें हमें तो क्यों, ये 10 अवतारी तो है, हमें क्यों उतना रुचि नहीं है, हमें क्यों नहीं आता है इसके ऊपर? भक्तों के सामने जैसे आप बोले हरे कृष्ण, आप नो प्रॉब्लम, हरे कृष्ण। तो
ये बताते कि ये जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये बोलते कि जब आप कॉन्स्टेंटली भगवान के जो श्रवण कीर्तन ये लीला के बारे में सुनते रहेंगे तो तभी ये हमें हमारा श्रृंखला से निकल सकता है। तो अभी प्रश्न निकलता है कि हमें क्यों रुचि नहीं है, इसमें रुचि आने की कारण क्या है। यहां पे उसमें से मैं आज एक अवतार भगवान की पृष्टि गर्भा के अवतार के बारे में श्लोक आज उठाया, उसमें से एक। ऑफ कोर्स अभी आने वाले में मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, पर आज के जो ये श्लोक है इसमें भगवान पृष्णि गर्भा, जब ध्रुव महाराज की जो कथा है 34 स्कंद भागवतम में आता है, तो बताते हैं कि जब ध्रुव एक दिन अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए जाते हैं तो उनकी सौतेली माँ है, उनको बताते कि उनको ठुकरा के बोलते कि घसीट के नीचे उतार देती है, सीधा घसीट के, और उनकी जो पुत्र है उत्तमा उसको बिठाती है। तो ध्रुव सोच लीजिए 5 साल का बच्चा था, और तभी तुरंत वो माता की ये जो कार्य को देख के एकदम उसको गुस्सा आ जाता है, ये मेरे पिताजी भी है, तुम क्यों मुझे घसीट के नीचे उतारे। तो बोले माता सुरुचि बोलती है नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठने के लिए, जाओ तुम, अगर चाहिए तो तुम मेरे गर्भ में जन्म लो तभी तुम जाके बैठ सकते हो। देखिए कितनी कठोर शब्द, उसका मीनिंग है कि तुम मेरे गर्भ में जन्म ले लो मतलब इस जन्म में तुम मर जाओ और दूसरे जन्म हुआ तो मेरे गर्भ में आएंगे तो तभी तुम्हें। तो ध्रुव को इतना बोलते कि इतना उस शब्दों की जो गहराई है उसके हृदय में इतने छुप जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है। हम लोग बोलते हैं कि आज बच्चे लोगों को कुछ बोलते, बट इट इज सेंसिटिव, एक इतना सेंसिटिव है एक शब्दों को, एक वो भी सत्ययुग में ध्रुव जैसे व्यक्ति बालक वो इतना सेंसिटिव था, तो तुरंत उसको चुप जाता है और रोते रोते चले जाता है, और रोते रोते भागते भागते सब लोग देखते हैं कुछ कोई नहीं। और पिताजी में सबसे बड़ा दुख क्या होता है ध्रुव को, कि जब वो माता की तरफ देखे, जब पिताजी की तरफ देते, पिताजी कुछ भी नहीं बोलते हैं। महाराज उत्तनापाद वो कुछ भी नहीं बोलते, तभी इसको लगते पिताजी आप क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं उसको ठुकरा रहे हो, वो कुछ भी, क्योंकि बताते हैं कि उत्तनापाद की आसक्ति सुरुचि के पास ज़्यादा थी। और तब ध्रुव महाराज जाके रोते रोते अपने माता के कक्ष में जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। आप अपने आप को ही पिक्चराइज करो, माता उनको पिक्चराइज बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे जब बाहर जा के आते तो रोते रोते हैं तो तुरंत माता क्या हुआ बेटा क्या हुआ, मीन्स दैट माता की जो प्रेम है, माँ की जो प्रेम है इस मुलायम, इज़ वेरी सॉफ्ट। अपने बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो सहन नहीं करते, तो क्या हुआ। तो ध्रुव बता दे कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे टुकराया, बोली कि आप पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता हो। तो सुनी थी तभी रोने लगती है। तो ध्रुव पूछता है कि माँ आप क्यों रो रहे हो। वो बोलती है कि दुर्भाग्यवश बेटा कि मैं भी तुम्हारी स्थिति में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पिताजी, तुम्हारे जो पिताजी है उनको मेरे साथ कोई लगाव नहीं है, उनको लगाव तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि के प्रति है। तो ध्रुव बोलता है कि मुझे मेरे पिताजी से भी वैसे मुझे राज्य चाहिए, मुझे भी पिताजी के स्थान में बैठना है, मुझे भी पिताजी के स्थान में बैठना है। तो तभी माता एकदम झुक के बोलती है कि ध्रुव मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना है अगर किसी का भी कोई इच्छा हो, मैं संतों से सुनी हूँ, जब मेरी घर पे थी तो संतों की मुख से सुनी हूँ कि अगर तुम्हें इच्छा तुम्हारा पूर्ण करना है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। तो ध्रुव तुरंत पूछता है कि कहाँ मिलेंगे मुझे विष्णु। तो तभी बोलते हैं कि तुम्हें बहुत जंगल में जाना पड़ेगा, ऐसे सुने हैं कि वहाँ जाके तपस्या करेंगे तो तुम्हारा इच्छा होगा, क्योंकि ये सतयुग के समय की बात थी।
तो देखिए ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया कि पहले हमें बताते कि कुंती महारानी बोलते हैं कि जो व्यक्ति हेल्पलेस कंडीशन में है वही भगवान का नाम और लीला को महत्व दे सकता है। जिसका कंफर्ट जोन है वो उतना सीरियसली नहीं ले सकता है। क्यों कुंती महारानी बोलती है जो ऐश्वर्य है और जिसके पास ज्यादा ज्ञान है और जिसके पास बहुत ब्यूटी है और वन नॉलेज, वो क्यों भगवान का लीला और कथा को रुचि नहीं रख सकते? क्योंकि उसको पता है कंफर्ट जोन है ना, ये चलता है, एक सात्विक मनोरंजन है, चल रहा है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। ये मेरे डाई हार्ड सिचुएशन नहीं है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। ये चल रहा है। एक शाम को आके एक अटेंड करना, एक सुनना चाहिए, बस एक बताते कि एक फॉर्मेलिटी। पहले के टाइम में बताते कि राजा महाराजा लोग किसी को भी पनिश करना रहता था ना, किसी को प्रिजनर को, उसको पानी में डुबाते थे, सीधा पानी में, और इतना दम घुटता था और तुरंत उसको जब जस्ट अबाउट टू डाई दैट टाइम उठाते थे, तभी वो सांस लेता था। हाँ, और दूसरे टाइम जब डुबाता था तो वो राह देख रहा था वो सांस के लिए, हाँ वो सांस अभी मिलेगा। उसी तरह हमें वो ये सब कंफर्ट जोन की वजह से हम लोग कृष्ण के ऊपर ये जो भक्ति करना इसको लास्ट रखे है। चल रहा है ना, गाड़ी तो आगे बढ़ रहा है ना, उसमें बड़ी बात नहीं है। नो, कृष्ण की एक शरणागति में एक शरणागति गए टू एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के बिना मुझे कोई शरण नहीं है, कोई रक्षा नहीं है, वो सर्व मेरे सभी संबंधी और एकमात्र ही संबंधी है। ये जब तक व्यक्ति को नहीं आगा, ही विल नॉट टेक इट कृष्ण कॉन्शियस सीरियसली। मेरा बेटा है ना, मेरे देखभाल करने के लिए है ना, मेरा घर परिवार है ना, दैट इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। कृष्णा वांट्स एक्सक्लूसिव शरण, इसलिए रुचि नहीं आ रहा है, इसलिए रुचि नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति उसको सीरियसली लिया है, प्रभुपाद बोलते थे, यहां पे एक स्टेटमेंट है, ध्रुव महाराज वॉज डेस्परेट टू सर्च फॉर कृष्णा। उनको जरूरत था, मुझे बताओ कहाँ पे। एक छोटा बालक, उसको पता मेरे को चाहिए, कुछ भी हो मेरे को चाहिए, नारायण मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो ही देख सकते। और माता ने भी बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि बाजू में मेरे पिताजी के पैलेस है, उधर जाओ वहां पे। नो, आई हैव हर्ड दैट द हाईएस्ट पर्सन हु इज कृष्णा, वो सचमुच गुरु है। गुरु मतलब प्राध्यापक्ष गुरु मतलब जो यू डजंट चीट। वो आप मुझे थोड़ा डॉलर दे दो, तुम्हारे जो प्रॉब्लम है, देखो ऐसा दवाई करना, ये करना, ये करना, बस तुम्हारा ये सॉल्व। दैट इज चीटिंग गुरु। सचमुच गुरु है तो बोलेगा द ओनली वेल विशर इज कृष्णा। यहां पे सब संबंधी को छोड़ दो, यहां पे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। अगर सचमुच डिपेंड है ना तो उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए मत आओ। दैट इज गुरु। गुरु मतलब मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन को, मेरा आर्थिक स्थिति को बड़ा करने का, वो गुरु नहीं है, वो धोखेबाज है। सिर्फ हमारे शरीर के लिए थोड़ा मलम लगाने वाला वो व्यक्ति है। रियल गुरु मीन्स टू कट, टू टेल द ट्रुथ। जब शिला प्रभुपाद जब गए तो उन लोगों को बोले, उन लोग अमेरिकन आए, स्वामी जी आपको कितना चाहिए, ये लो डॉलर ले लो और चले जाओ ना, आप क्यों ये 4 नियम का पालन करने के लिए बोल रहे हो? इट इज इम्पॉसिबल। ये कोई करने वाला है क्या? मांस मछली नहीं खाना, विषय पर स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं करना, लिखा, ये क्या जरूरत है? आप चले जाओ ना, आपको डॉलर चाहिए ना। प्रभु से आई एम नॉट कम फॉर टेकिंग डॉलर्स, माई इंस्ट्रक्शन इज टू टेल द ट्रूथ। सुरुचि सुनी थी, तुरंत बोली यू वांट टू गेट कृष्णा, तुम्हें बड़ा जो भी चाहिए गो एंड आस्क कृष्णा। दैट इज रियल पेरेंट्स। माता पिता मतलब फर्स्ट माता पिता, माता न सश्यत, गुरु न सश्यत, पिता न सश्यत। जब तक हम अपने बच्चों को या अपने डिपेंडेंट को यही नहीं बताते कि कृष्ण एकमात्र ही तुम्हारे रक्षक है, एकमात्र प्रोटेक्शन, हमारे माता पिता का ड्यूटी नहीं कर रहे हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस भौतिक जन्म से निकलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन ये देना वही हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सुनीति ने पहला बोला है कि फर्स्ट यू शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। विष्णु तुम्हारे आराधना पूर्व है। जब वो इच्छा आता है जीवात्मा के बाद, तभी वो ढूंढने लगता है कहाँ मिलेंगे मुझे विष्णु, वेयर विल आई गेट विष्णु।
और तुरंत वहां पे प्रभुपाद बताते कि नारद जैसे व्यक्ति आ जाते हैं। गुरु के, भगवान के आशीर्वाद से एक गुरु आता है और गुरु के आशीर्वाद से कृष्ण मिलते हैं। वो इच्छा दे के इसलिए प्रभुपाद में ये पर्टिकुलर लीला, इसलिए एक लीला मैंने लिया है क्योंकि मेन हमारी कहाँ कमी कहाँ है, हमारी जो भक्ति में कहाँ कमी है कि क्यों हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पादन हो रहा है। मैं हमेशा ये बताता हूँ, जब अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, उनके गुरु से मिलते हैं 1932 जब इलाहाबाद, जब वृंदावन में कोशी, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके यात्रा निकाले थे, तो उस समय सभी भक्त लोग को एक दो ऑप्शन था कि जिसको परिक्रमा में जाना है तो जाइए, और जिस व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज प्रवचन देने वाले, कृष्ण कथा करने वाले, जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं। तभी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उस टाइम गृहस्थ थे, वो एक गृहस्थ थे, पर उन्होंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, मैं उधर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे गुरु जब दो शब्द बोलेंगे उनको सुना तो मेरे प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित तो आ जाएगी, वहां सिर्फ एक माथा टेक के आऊंगा, बट व्हाट विल आई अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा। और जब वो सुन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा, बहुत एक साल के बाद जब उनको उनकी नाम जो दीक्षा के लिए उन्होंने रेकमेंड किया था, बोले यस मैंने देखा है अभय को अच्छा लगता है, मैं जब वो कृष्ण कथा करता है वो सुनता है और निकलता नहीं है। अभी व्हाट इज हियरिंग, सुनना मतलब सब लोग बैठ के सुनते हैं, हाँ सुन रहा हूं ना, हाँ बहुत बोलिए आप बोलते जाइए। हमारे और परीक्षित महाराज का श्रवणम में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस। हम लोग भी कृष्ण कथा सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए, बहुत अच्छा। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, ऐसे एटलीस्ट बैठ के सुना, बट उससे भी उत्तम प्रकार का श्रवण मतलब क्या है। उत्तम प्रकार के श्रवण मतलब मुझे ऐसे शब्दों को ढूंढना चाहिए जो मेरे जीवन में मैं डाल सकता हूं, दैट इज रियल हियरिंग। ऐसे नहीं कि यहां से सुना, गेट से बाहर करते निकल गया, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सात्विक मनोरंजन था, बहुत अच्छा। ऐसे शब्दों को ढूंढना चाहिए, व्हाट कैन आई पुट इट इन माई लाइफ। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा, Abhay was hearing in such a way that he wants to put it in his life. मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो सीरियसली लेके अपने जीवन में डालना चाहता है, दैट इज रियल हियरिंग। साधु का मुख से सुनना मतलब ऐसे तीव्र पूर्वक ऐसे सिर्फ नकल नहीं करना, बट यू हैव टू हियर इन सच ए वे, एक शब्द भी उनको सुने मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, आई वॉन्ट टू पुट इट इन माई लाइफ। रिसेंटली हमारे परसों जो शनिवार में रूप रघुनाथ प्रभु आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा शब्द बताया था, जीवन में क्रांतिकारी सिर्फ एक व्यक्ति ही आता है। इतने लोगों में क्रांतिकारी एक ही व्यक्ति आता है, क्यों? क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना हम लोग क्या करने, सब लोग वो कर रहा है ना, करने देना, कर रहा है ना, करने देना, हम लोग क्या चल रहा है ना, चलने तो ना। इसलिए बताते प्रभुपाद बोलते जिस व्यक्ति के साथ अंदर क्रांतिकारी उत्पादन नहीं होता है तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। टू हैव अ रेवोल्यूशन, टू हैव बोलते ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में उसको एक रिफॉर्मेशन। अगर तुम्हारे जीवन में रिफॉर्मेशन चाहिए तो यू शुड क्रिएट अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होना ही चाहिए, बस हो गया, ये बस हो गया माया का सुनते सुनते इतने जीवन में अपनी इंद्रियों की सेवा करते रहना, माता इन लोग के परिवार के संबंध यही करना, मैं सभी 84 होने में यही करते जा रहा हूँ, इनफ नाउ इज दिस, गिव दिस लाइफ टू कृष्णा। तो उस दिन बता रहे थे जब तक ये जो क्रांतिकारी जीवन में नहीं आता है तब तक हम इस कृष्ण कॉन्शियस नहीं लेंगे।
नहीं तो सोच लीजिए ये जो स्वतंत्रता हमें मिला है, ये अगर कोई, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया वीर सावरकर के जैसे कोई नहीं रहते तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्रांति नहीं, वी डोंट वांट टू लिसन, हमको सुनना ही नहीं है, ब्रिटिश राज्य का सुनना ही नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने बस हो गया, ये इंद्रियों को इंद्र तृप्ति करते करते, आँख बोलता है मुझे ये सेवा करो, कान बोल रहा है मुझे ये सुनना है, ना जबान बोल रहा है मुझे ये खिलाओ, हाथ बोलता है मुझे उसको स्पर्श करना, मैं भागते ही जा रहा हूँ, सबका सेवा करते ही जा रहा हूँ, ये क्या यही जिंदगी है? मेरा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। हम लोग कभी कभी बोलते नहीं यार मेरा कोई इंडिपेंडेंस है, ये यही करते रहो, मैं पूरी जिंदगी में यही कर रहे हैं हम लोग जन्म जन्मांतर से। अभी टाइम है, नाउ यू हैव एन इंडिपेंडेंस, अभी स्टॉप कर दो। Now the ultimate service is to my Lord, I don't want. ये ऐसे मास्टर लोग हैं, इनकी सेवा करते करते मैं थक गया। ये जब तक क्रांतिकारी हृदय में नहीं आता है, आई वॉन्ट टू हियर, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हियरिंग शुड बी, सुश्रवणम की मतलब ऐसा होना चाहिए, व्हाट कैन आई पुट इट इन माई लाइफ, मुझे ऐसा सुनना चाहिए, दैट इज हियरिंग। वो ऐसा, क्योंकि जब देखिए पाठशाला में सब लोग जब जो शिक्षक सिखाता है, सब लोग को सिखा रहा है, पर फर्स्ट और सेकंड या थर्ड कौन आता है? वन इज सीरियस, मुझे कुछ इसमें पाना है, उसको सीखना है, वन इज सीरियस अबाउट इट। वो व्यक्ति मिल सकता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह अगर एक भौतिक चीज को पाने के लिए इतना अपने मेहनत करना पड़ता है, अब तो भगवान को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए एक परसों हमारे एक ब्रिजवासी आए थे प्रभु जी जैसे, और एक राधा कुंड, वो बोल रहे थे जब तक अपनी जीवन में आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर समुंदर के बेड, हमें पता है समुंदर के बेड के अंदर मोती मिलता है, मोती बहुत सारे बहुत प्रकार के, पर हम लोग सोचेंगे अरे मैं डूब गया तो, मैं ये किया तो मैं वापस आऊँगा क्या, पता नहीं, मुझे स्विमिंग का ट्रेनिंग मिला है पर मैं अगर ये सब करना है तो हम लोग उधर ही रह जाएंगे। पर जो व्यक्ति बोलते रिस्क, आर या पार, छोड़ा आर या पार करना ही है। अगर जो भी वो सोचने वाला सोचते रहेगा आर या पार, मुझे दिया है आई शुड ट्राई, ये मनुष्य जीवन मिला है आई शुड ट्राई, मेरा फुल, कल ये कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता था, दैट डाउट शुड नॉट कम। भगवान ने मुझे जो समय दिया है उसको मैं पूरा आर या पार करके, ही हैज टू जंप। और ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, ध्रुव महाराज के जैसे। जो व्यक्ति, अगर ध्रुव महाराज भी बोल सकते थे, तभी यही नारद मुनि जब सामने आते हैं, उन्होंने भी टेस्ट किया, अरे ध्रुव क्या कर रहे हो, इतनी छोटी छोटी बातें के चिट्टू पिट्टू को पा रही है, तुम इतना सीरियस ले रहे हो। ये तो हर बच्चे लोग की खेल है, जाओ क्रिकेट खेलो, कुछ तो करो, उत्तम को उसको बुलाओ, कुछ करो, या ऐसे सब। भगवान भी देखते आर यू सीरियस, गुरु भी देखता आर यू सीरियस। अर्जुन एक ही बनता है, सब लोग नहीं बनते, क्योंकि द्रोणाचार्य में देखा आर यू सीरियस। दोनों ने पहला टेस्ट किया ध्रुव महाराज को, जाओ ना, नहीं, आई वॉन्ट टू अटेन कृष्णा, मुझे चाहिए, बताओ कैसे करना। दैट मीन्स ओ ये, तभी वो शिक्षक, ये सीरियस है, लड़का बहुत सीरियस है। पहले टीचर भी देखते हैं, सच में जा ना खेलना, क्योंकि पूरा ज्ञान कभी देता है वो व्यक्ति को सीरियस है, मुझे बताओ, उसका दिन रात वही है, मुझे कैसे बताओ। तपस्या करना पड़ेगा, आज चलेगा, क्या तपस्या, बोलो व्हाट शुड आई डू, ओम नमो भगवते वासुदेव जाप करना पड़ेगा, चलेगा, बताओ हाउ शुड आई डू। इंक्विजिटिव, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ध्यानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिना। ये जब मूड रहेगा तो तभी भगवान प्राप्त कर से, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। और 6 महीने में, ओनली विद इन 6 months। पर क्या तपस्या, व्हाट तपस्या। जब ध्रुव महाराज वही गहरे एकदम जंगल में बैठ के तपस्या करते, एक पैर पे बैठ के खड़े होके कर रहे थे, और जब पुकार रहे थे ओम नमो भगवते वा, तो बीच बीच में इतना ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत सारे लोग देवगण एकदम विचलित हो रहे थे, और जाके कान में आके बोल रहे थे ध्रुवा, अरे तुम्हारे पिताजी का मृत्यु हो गया, ध्रुवा ध्रुवा देखो सांप आ गया, सांप, ध्रुवा देखो अभी बहुत गंगा भर जाए, अरे शेर आ गया, शेर। बट ही वॉज फिक्स्ड अप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दैट इज परमात्मा दिखते, ही इज सीरियस अबाउट इट। उसी तरह प्रभुपाद बताते यू हैव टू शो योर सीरियसनेस।
अगर सचमुच भगवान को प्राप्त करना है, हमारी अपना सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा। कितना भी हो, आई वॉन्ट टू चैंट, 16 माला का मैं शपथ लिया हूँ, नींद आ रही नहीं, स्टिल आई वॉन्ट टू चैंट, मैंने गुरु को शपथ दिया हूँ, आई गिवन माई वर्ड टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। खाने के लिए मुझे नींद नहीं आता है, सोने अभी पिक्चर देखने के लिए नींद आता है, जाप कर दे। नो, दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स। ये सीरियस है, ही वांट्स टू बी अडरिंग टू द प्रिंसिपल। वो चाहता है मुझे अपने जीवन को परिपूर्ण कर, ही वांट्स सिंसियर अबाउट इट। ये सिंसियरिटी भगवान चाहते हैं, और तभी भगवान ये देखे, ही वॉज वेरी सीरियस। इतना सब मुश्किलें, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आता है, कभी कभी ये डिस्टर्बेंस, कभी कभी भक्तों का डिस्टर्बेंस, कभी कभी गॉसिप, प्रजल पर डिस्टर्बेंस, बहुत सारे। जैसे गौर गोपाल जी प्रभु बता देना, इस दुनिया में मुश्किल तो आना ही है जनाब। ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल नहीं आएगा, पर मुश्किलों से कैसे झेल के भगवान को याद करना, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिए, इट हैज टू कम। आज हम लोग बैठ के अच्छे प्रवचन कर रहे, 110% ये अवसर हमें कल नहीं मिल सकता है, फिर भी आप भगवान को भूलेंगे, याद करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, या भूल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये तब ये जो बता देना, मराठी में बोलते हैं वेळ लागला पाहिजे। जर तुम्हाला जी कुछ काय पाहिजे तर तुम्हाला वेळ लागला पाहिजे। जेव्हापर्यंत वेळ नाही लागलं हे नाही मिळणार। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, इनका नाम बोलने के लिए, बट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम? उनसे क्या सीखे? जो व्यक्ति को बता देना ही शुड बी मैड, उसी को ही मिलता है। सब लोग बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं इट इज लाइक अ बिग यात्रा। ये कृष्ण कॉन्शियस मतलब एक बड़ा यात्रा के जैसे। आप लोग सुने यात्रा मतलब ऐसे एक कभी कभी गांव में एक यात्रा लगता है, वो उधर एक सर्कस भी हो रहा है, कोई बहुत सारे ये बोलते ना जो फेरी वाले उन लोग भी आते हैं, उनका पूरा बहुत सारे ड्रामा होता है, ये होता है। वो एक यात्रा के जैसे लोग आते हैं, हाँ बहुत है। उसके बाद यात्रा खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं। उसी तरह कृष्ण कॉन्शियस आने के लिए सब लोग आते, पर टिकता है और पास होता है एक या दो व्यक्ति। ही नोज। इसलिए प्रभुपाद बोलते आश्चर्य वो बात नहीं है कि जो निकल जाता है, आश्चर्य वो बात है जो आज भी कृष्ण कॉन्शियस पालन कर रहा है। तो ये लीलाओं के बारे में हमें रुचि आने के लिए वी हैव टू कॉन्स्टेंटली, वी आर, वो डेस्परेट नीड है। एक शब्द भी और जो भी जब नाम जब या भगवान की लीला वो सुनते, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट? किस भावना से मैं सुनना चाहिए? मुझसे मुझे क्या वो चीज़ है जो मेरे हृदय में पड़े। इसलिए बताते कि 1 स्टेप, अगर हम 1 स्टेप लेंगे, भगवान का 10 स्टेप हमारे सामने लेंगे। वो भगवान वही चाहते हैं, बेटा एक ही कदम रखना, सिर्फ एक कदम रखना। जब हम छोटे रहते, छोटे छोटे बच्चे, पता है हमें बैलेंस ही है, फिर भी माता पिता चाहते हैं कि एक कदम तो रख, इतना भी आलसी मत बनना, एक कदम। तो एक कदम रखने का प्रयास किया तो भगवान तुरंत पकड़ लेते। अच्छी बात है, एटलीस्ट यू टुक 1 स्टेप। भगवान चाहते हैं टेक 1 स्टेप। 1 स्टेप क्या है? आई वॉन्ट टू बी सीरियस। ये फर्स्ट स्टेप है, आई वॉन्ट टू बी सीरियस। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, आई वॉन्ट टू बी सीरियस। इट इज नॉट ऐसे फन प्ले नहीं है, ओके और चल रहा है ऐसे। नो, आई वांट टू बी सीरियस। ये मन का कॉन्स्टेंटली उधर खींचना होता है, आई डोंट वांट, आई वांट टू बी शोइंग अस, कृष्णा मुझे आप चाहिए, अरे ये है ना, ये देखो ना, नो आई डोंट वांट एनीथिंग, आप मुझे चाहिए, आई वांट यू। इतने जन्म के बाद मुझे आप मिले, आई वांट यू। इसलिए वो ध्रुव महाराज को ध्रुव लोग में उतना इजीली नहीं है। काचम विचिन्वान अभी दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्म्यरम नहीं आचे। वो स्टेज, बहुत सारी चीज हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। श्रीधर कोलबेज के सामने भगवान पूछते हैं, अरे श्रीधर ये ले लो ना, तुम्हें मैं मिस्टिक पावर है। नो, आई वॉन्ट यू कृष्णा। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो उसको पता है, क्योंकि अगर भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ है। ये दुर्योधन और अर्जुन का मेंटालिटी यही है, यही फर्क है। दोनों भी बड़े दानवीर थे, दोनों भी बड़े कार्यकर्ता थे, दोनों भी बड़े महाशवीर थे, दोनों भी बड़े अच्छे सद्बुद्धि वाले थे, सभी उनके पास अच्छा गुण था। पर फर्क क्या है? एक को सिर्फ
भगवान को छोड़ के बाकी सब चाहिए, और एक को सिर्फ कृष्णा, आई वॉन्ट यू, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। वो जब रहेगा तो तभी हम उसको सीरियसली देंगे। तो दुर्योधन का यही था, जब नारायण सेना मिला बस हो गया, भगवान घर जा रहे, वो क्या है, वो कृष्ण से आप नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप नारायण सेना नहीं मिला तो चलेगा, आई वॉन्ट यू कृष्णा, मैं नहीं आता हूं, नो वॉट एवर इट मे बी, आई वॉन्ट यू। तो ये प्रिंसिपल जब व्यक्ति के पास रहेगा सीरियसली, देन कृष्णा विल रिवील टू हिम। तो उसी तरह ये जो लीला है, ऑफ कोर्स मैं स्टॉप करता हूँ, ये जो भगवान की लीला है ये हमें किस रूप से सुनना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में जो प्रभुपाद हर शब्दों में वन नेम, वन भगवान की एक पास टाइम को जो व्यक्ति उतना सीरियसली लेगा, वन हु हियर्स इट विद अटेंटिवनेस, दैट कृष्णा ये वापस मुझे सुनने नहीं मिलेगा, वो सीरियसली, देन परमात्मा विद इन द हार्ट स्टार्ट्स रिवीलिंग टू हिम। तो उसी तरह में हम शुरुआत करेंगे, अभी ऐसे करते जाएंगे कि एक एक लीलाओं के में मैंने अब सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, और भगवान के जो 10 जो अवतार मैंने ले लिया उसके बारे में और बताते कि मंथन करते जाएंगे, जितने हमारे पास क्षमता है। हम उनको कोई टच भी नहीं कर सकते, पर जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारे पास सहनशीलता है, वो करके हम भगवान की कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम यही बताते कि ये प्रिपरेशन था, इट विल बी अ रेपिटेटिव, ये प्रिपरेशन है, बट ये मेरे लिए खुद ही बोल रहा था कि मेरी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, आप लोग की कृपा से मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मैं ये आके एटलीस्ट श्रवण कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा।